Good evening, everyone. Am I clearly audible? Yes, sir. Do we have any doubt from yesterday? Any doubt we have from yesterday? Tell me. Yes, no? You have received the material? PDF you have received? Wonderful. So let us proceed from where we left, right? Till this point, that government is not a fundamental right we have completed, right? Now, recently Supreme Court has passed a judgment on preventive detention. Are you aware about preventive detention? Are you all aware about the preventive detention? Yes, no? Now, preventive detention is the part of Article 22 of the Constitution, right? Do we remember that? So preventive detention is part of Article 22. The rights under preventive detention are available for all. Okay, they are available for all. It means for citizens as well as aliens. Now, these rights that are there in the preventive detention, these rights, they can only be exercised when a person is under preventive detention. Now, the Supreme Court has made a judgment that if a person is put under preventive detention, that can only be done if there is a violation of public order. Okay, you cannot just abruptly put someone under the preventive detention. If there is a violation of any public order, you can put that person under the preventive detention. Clear? And also Supreme Court has also provided that if there is any ordinary law available, if there is any ordinary law available, then in that case, you should be exercising that ordinary law and you should not be focusing about the preventive detention. Is it clear? Why? Because the articles under or the rights under Article 22 are not available for those under preventive detention. It means preventive detention में कौन-कौन से rights नहीं होते? The rights to be informed, right to have legal aid, right to be presented before a magistrate, and right to be set free within how many hours? 24 hours. Clear? So these rights will not be available under preventive detention. But if a person is put under the ordinary law, that person will have all the rights available. Is it clear? यहाँ तक समझ में आ गया है? Very good. चलिए न्यूज़ को और आप थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं. So Supreme Court ने क्या बोला? That the person can only be put to bar when the person can adversely affect the maintenance of public order. ठीक है? क्या है पहली चीज? That the person should be put behind the bars for public orders. Clarity provide करी है on the term of public order. That what is public order? This clarity is also provided. क्या है? That the person should be having any harm to the public order, right? And that public order में क्या include होगा? Contravention of law such as cheating, criminal breach of trust, and that is affecting the law and order. Okay, these are the conditions that are provided. Now, government को direction क्या दी है? I have already told you that the direction is that the government should try to identify whether there is a public order or the ordinary law available or not. And government ने ये भी direction दी है that the court or the court ने direction दी है that the court must identify the legality of any arrest under the preventive detention. जहां पर आप ये चीज identify करें that क्या उस time पर ordinary law available था कि नहीं था जब ये preventive detention में person को put किया. ठीक है? अब preventive detention
क्यों मना कर रहे हैं उसको पुट करने के लिए? बिकॉज इट इज अंडरमाइनिंग द लिबर्टी, इट इज पर्सन्स राइट। हाँ बेटा, सर कोई एग्जांपल सर बताते ना सर। प्रिवेंटिव डिटेंशन का नहीं सर, ये जो अभी मतलब रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल। बेटा रिसेंट डेवलपमेंट यही था कि देयर वाज अ पर्सन, ये जो केस है तेलंगाना का, बनका स्नेहाशीला, दिस पर्सन वाज पुट बिहाइंड द बार्स considering that this person may cause trouble if kept outside. That person is an economic offender. तो अगर इनको बाहर रखेंगे तो लोगों को चीट करेंगे, ठीक है। तो ये केस है, तो उसी उन्होंने बताया कि ये जरूरी नहीं है ना कि करें। और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी क्या कहती है, दैट द पर्सन शुड बी अलाउड टू डू दैट। आपने उनको बिना किसी क्राइम करे, इफ यू आर पुटिंग देम बिहाइंड बार्स, तो दैट इज अगेंस्ट देयर राइट टू लाइफ। दूसरा, इफ यू आर पुटिंग देम अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो दे कुड नॉट और दे कैन नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स अंडर आर्टिकल 22 जो हमने भी आपको बताया। तो इसीलिए ये गलत है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी कुछ राइट्स अवेलेबल हैं। राइट्स क्या अवेलेबल है? द पर्सन मस्ट बी टोल्ड द रीजंस फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, person must be told reason for preventive detention, but if it is affecting the state security or public order, the reasons do not or not to be necessarily shared. Okay, not to be necessarily shared. Then ये और provide करते हैं that अगर person is detained beyond the term of 3 months, the person is to be detained beyond the period of 3 months, that person can only be detained after getting an opinion of the advisory board. ठीक है, दैट एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था, वो 3 मंथ्स को 2 मंथ्स कर दिया, लेकिन आज तक वो अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज देयर इन न्यूज रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो राइट्स से क्वेश्चन बन सकता है, और इसमें एग्जैक्टली क्या होगा ये नहीं पूछेंगे, राइट्स से बन सकता है। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में लॉ बनाने की पावर किस किस के पास होती है? स्टेट के पास, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास, बोथ। ठीक है, देखिए आर्टिकल 35 दो कहता है दैट ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज, राइट, बट आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर इवन द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट बोथ कैन मेक लॉज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्लियर? वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये जो 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था बेटा, यहां तक हम लोग पहुंचते पहुंचते ये बन गया है अब 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को 1.5 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, है ना, तो जब से हम पढ़ रहे हैं तब से अब तक ये जो बिल था ये पास होके एक्ट बन चुका है। ठीक है, तो इसीलिए उल्टा चलते हैं, हमेशा आपको हम बोलते हैं ना, रीड करंट अफेयर्स बैकवर्ड्स। 127 पढ़ते हैं, फिर दोबारा 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पढ़ते तो एक ही साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, बहुत साल पहले, ठीक है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसमें क्या था, जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। तो जो जैसे वी हैव अ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, वी हैव नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, we have now the National Commission for Backward Classes, which is a constitutional body. It was made as a constitutional body through 102nd Constitutional Amendment Act. अब इस बॉडी के थ्रू क्या हो रहा, 338B आर्टिकल ऐड हुआ, that mentioned the National Commission for Backward Classes. At the same time 342A add. This 342A, it provided powers to the president. अभी हम 102nd बता रहे हैं बच्चों, ठीक है, 105th पे नहीं पहुंचे। It provided the power to the president to specify the people or the communities to be added into the socially and educationally backward classes. मतलब ओबीसी कौन आइडेंटिफाई होगी कम्युनिटी, वो पावर दी गई प्रेसिडेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट के पास भी पावर है उस लिस्ट में किसी भी कम्युनिटी को ऐड करने की और हटाने। क्लियर? तो ये 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, बट इशू क्या रहा कि
before this Amendment Act, the state or UT also had the power to identify which communities to be added as the other backward classes community. Okay, which communities to be added, which community has to be excluded. तो ये जो act आया, it was considered as violating the federal structure. कि जो power थी states की, वो power ले ली जा रही है. And when it is violating the federal structure, the court was reached, or the jurisdiction of the court was reached, where the court has identified that the federalism is a basic structure of the constitution and you cannot take away this power of the state. Okay, so इसीलिए in order to bring back the powers of the state, that the state government can also exercise their right to include OBCs in a state list of the social and educational backward classes, वो अब कर सकते हैं. ठीक है, so 105th Constitutional Amendment Act के थ्रू एक state list भी हो सकती है. ठीक है, and that may differ with the central list. पार्लियामेंट तो बनाती है सेंट्रल की, स्टेट अपनी खुद भी लिस्ट बना सकती है. इसका एग्जांपल आपको बताते हैं. जैसे जाट कम्युनिटी is coming under the other backward classes in the center, but when it comes to the state, they are not necessarily coming under the OBC community. Okay, Haryana mein Jats, they are not under the OBC community. In UP, they are the part of the OBC community. Okay, so it depends upon the state list. वो पावर जो चली गई थी अब दोबारा आ सकती है. तो it means if a body is or if a community is weak in some state, the state government can provide them certain rights. Is it clear? इशू समझ में आ गया है. तो अब क्या है, दो लिस्ट होती है. एक लिस्ट सेंटर मेंटेन करते हैं जिसको प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं, पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट. एक लिस्ट होती है जो यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स की अपनी लिस्ट होती है. इज इट क्लियर? पहली न्यूज समझ में आ गई है? वेरी गुड. कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई मेंशन? चलिए अब ये बताइए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, दिस अमेंडमेंट वाज थ्रू which way? Special majority, essential majority, or ratification of half of the state? बताइए, स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट. बताइए. सिंपल मेजॉरिटी बेटा क्या बोल रहे हो? सिंपल मेजॉरिटी. सिंपल से नहीं, सिंपल होता तो बेटा अमेंडमेंट ही काउंट नहीं होता, तो ऐसे कैंसिल हो गया. स्पेशल मेजॉरिटी से था पर सर स्पेशल तो है, लेकिन स्टेट का रेटिफिकेशन है कि नहीं? यस सर. है? नहीं था. अगर होता तो फिर बाद में ये नहीं सर. लॉजिक क्या कहता है, स्टेट का होता तो स्टेट बाद में कहते क्यों कि हमारी पावर ले ली. दूसरा, अब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की पावर कहां से आती है? बताओ. फंडामेंटल राइट्स है ना, और फंडामेंटल राइट्स पे लेजिस्लेट करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है ना. सो इट वाज ओनली थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी. इज इट क्लियर? वेरी गुड. तो अब ये चीज समझ आया. क्वेश्चन कैसा आ सकता है यहाँ से? क्वेश्चन आता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से. तो हम लोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को और अच्छे से कर लेंगे. अभी ये इंक्लूड हो गया, आगे चल के 105th दोबारा आ जाएगा, तो तब एनसीबीसी तब उसमें इंक्लूड करके पढ़ा देंगे. ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? वेरी गुड. अब देयर इट वाज इन न्यूज अबाउट द राइट टू बी फॉरगॉटन. ठीक है, there was a claim by a Bengali actor regarding the removal of her videos from the internet, where she observed or where she asked for the right to privacy. But right to privacy, where she is asking that right to privacy should also be including right to be forgotten. Okay, so इसलिए हमें समझना होगा what is right to be forgotten. So right to be forgotten is a right that was used for the first time in 2014 in the European Union. That if a person
does not want their presence on the internet or on the media, that person's all the information shall be removed. Let us take an example. It is in news regarding the incident of Will Smith and Chris Rock. It is in news. अब मान लीजिए after 10 years, Will Smith and Chris Rock, they want to forget this chapter of their life, right? But it will always be there. Similarly, अब देखिए, अब मान लिया ऐसा कुछ इंसिडेंट आता है, दोबारा से श्रीसंत को बीचा दोबारा से पिक्चर में ले आएंगे, हरभजन सिंह एंड श्रीसंत को. It happened long back, right? So अगर उनको ये हटाना है तो it will be as the part of the right to be forgotten. Okay. अब ये right to be forgotten, is it a fundamental right in India? Yes, sir. Yes. Part of right to privacy, and right to privacy is fundamental. It is beta only right to part or right to privacy. In India, Article right to 21. be forgotten. Right to be forgotten is not still recognized. Okay, it is still not clearly recognized. Right? It is a statutory right in European Union under the General Data Protection Regulation. In India, it is included in the Personal Data Protection Bill, which is yet to be passed, and it is also part of the Information Technology Act 2000. Okay. However, it is still not considered as a fundamental right. Okay. Still, it is not a fundamental right. However, right to privacy is a fundamental right. Through which case? Puttaswamy case. Okay, it is a fundamental right through Puttaswamy case. Are we clear? Sir. Yeah. Sir. पूछो. Sir, it is a legal right ना, हाँ, it is a legal right. Legal right भी मतलब not clearly specified mention नहीं है, लेकिन IT Act के अंदर it can be exercised. Clear? Very good. So now, another constitutional amendment was in news. 97th constitutional amendment. So 97th constitutional amendment, it came in the year 2011. This amendment act was regarding the changes in the constitution with respect to the cooperative society. The cooperative societies, they were given a constitutional status by getting added into the Article 19(1)(c). They got the constitutional status by getting added into the DPSPs under Article 43(b), and a separate part, that is Part 9(b), was added in the Constitution. So this this Constitutional Amendment Act, it provided the standards of incorporation, regulation, winding up, composition, tenure, audit, and submission of periodic accounts of this report. However, with this, the cooperative, which was a state subject under the state list, entry 32, with this constitutional amendment, the power of the state was reduced. The state's power was bypassed. Right? And because federalism is a basic structure, the courts, they identified that the state's power with respect to the cooperatives cannot be taken away. The state's power with respect to the cooperatives has to be respected. And regarding this, the Supreme Court has quashed the most of the provisions of 97th Constitutional Amendment Act. Okay, so most of the provisions of this act are now not functional. Now court ने क्या बोला कि जो है with this amendment act, जो state की exclusive power थी to legislate on cooperative sector वो ले ली गई है, and we will not be allowing that. Is it clear? दूसरी चीज, ये जो act था, amendment act था, ये पास होना चाहिए था with the ratification of half of the states, but it was not passed through the ratification of half of the states. इसीलिए ये valid नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने जो प्रोविजंस है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फॉर द स्टेट कोऑपरेटिव्स उसको कैंसिल कर दिया. क्लियर? यहां तक समझ में आया? The provisions with respect to the cooperatives are no more functional as per the 97th Constitutional Amendment Act. Then mainly उन्होंने सबसे ज्यादा क्या स्ट्रक डाउन किया है? They struck down Article 243 ZI.
ओके क्लियर 243 ZI। बट कोई भी ऐसा प्रोविजन जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव से डील करता है, यानी कि अ कोऑपरेटिव विच इज फंक्शनल इन मोर देन वन स्टेट, दैट प्रोविजन इज स्टिल वैलिड। क्लियर, दैट प्रोविजन इज स्टिल वैलिड। इट मींस with respect to the cooperatives, the power of the state is restored and the powers with respect to the 97th multi-state cooperatives will remain functional. Clear? ये समझ में आ गया सबको? तो दिक्कत है तो बताइए। यस नो, कुछ तो बोलिए। आज सब जैसे नाराज क्यों हो सब? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो क्लियरली मेंशन्ड है स्टेट में, और किसी ने पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट भी नहीं की, और ये कोई ऐसा मैटर भी नहीं है जिससे पार्लियामेंट को लॉ होना चाहिए, तो सडनली पार्लियामेंट ने कैसे बना दिया ये? बेटा इन्होंने लॉ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था कोऑपरेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए, लेकिन इन ऑर्डर टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो उन्होंने स्टेट की पावर ले ली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो अभी भी है कोऑपरेटिव्स का, लेकिन द पावर ऑफ द स्टेट जो छीनी गई थी वो वापस दे दी गई। ठीक है, समझ गए? अब पेगासस न्यूज में था, है ना, इजरायली स्पाईवेयर है पेगासस, वो न्यूज में था। तो अभी हम बस प्रोविजंस देखेंगे इंडिया में स्पाइंग के लिए या फिर इंडिया में सर्वेलेंस के लिए कौन से प्रोसीजर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि इंडिया में सर्वेलेंस लॉफुली होती है। ठीक है, इंडिया में द सर्वेलेंस इज लॉफुली, सो वी मस्ट नो व्हाट आर द लॉज विद रिस्पेक्ट टू द सर्वेलेंस। तो क्या लॉ है? पहला जो टेलीग्राफ एक्ट 1885 है उसके थ्रू, सेकंड द आईटी एक्ट 2000, इन दोनों के थ्रू द सर्वेलेंस इज रेगुलेटेड, वेयर द सर्वेलेंस कैन बी डन with respect to the situation if there is any threat to the sovereignty and integrity of India, if there is any security of state involved, if there is the friendly relations with the foreign state involved, or in order to prevent the commission of an offense, right? ये वही सेम restrictions हैं जो हमारे freedom of speech and expression पे भी है under 92. It means the interception or the surveillance can be done with the same restrictions that are restricting our freedom of speech and expression. ठीक है, अब ये जो restriction है ये कब impose हो सकती है? Only in case of public emergency or in the interest of general public. ठीक है, समझ में आया? ये नहीं कि आप जो जैसे सोचते हो ना कि अच्छा अब तो जो है हमें सब पता लग जाया करेगा, एक बार सर्विसेज में चले जाए फिर हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाया करेगी, हम सुन लेंगे, है ना, मूवीज में ऐसे दिखाते हैं ना। So it can be only done on the grounds of public emergency and interest of public safety. ये जो ground है, reasons जो हैं, they should be given in written that these are the reasons, and journalist की interception नहीं की जा सकती, and mostly Pegasus use हुआ था journalist को intercept करने के लिए, है ना। So the interception of journalist is not lawful. अगर कुछ हो रही है तो it will be unlawful, okay, it will be against the law. Clear? Similarly, Supreme Court ने safeguards दिए हैं that these guidelines of the Telegraph Act must be followed. Okay, Supreme Court ने clearly बोला that these guidelines must be followed. Supreme Court ने बोला कौन सी guideline follow हो रही है? पहली, that in order to get the order, you must get the order from the Secretary of the Ministry of Home Affairs. The Secretary या फिर Secretary level के officer Home Department की state government में they can give the orders. मान लीजिए secretary is not available. In that case, any person who is not below the rank of joint secretary, that person can give the orders. वो भी तब where the secretary has authorized that person to give orders. मतलब उससे subordinate level पे आप order नहीं ले सकते. Is it clear? Lawfully. Main बात ध्यान रखिएगा, lawfully. Otherwise तो आप अपने जो तो आपके दोस्त हैं जो जियो में काम करते हैं उनसे बोल सकते हो, जरा वो बताना, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट लॉफुल इंटरसेप्शन। ठीक है, आईटी एक्ट क्या बोलता है? दैट एनी सच सर्वेलेंस
can be done for the investigation of an offense. Okay, which is a very broad term. इसके अंदर हम कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं. इसीलिए more surveillance is done not under the Telegraph Act but under the IP Act. समझ में आया? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनाना चाह रही है यूपीएससी तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? क्लियर? यस और नो? वेरी गुड. अब एक डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज हुई जहां पे इंडिया की रैंक है 46. ओके, इंडिया इज रैंक 46. ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है बस हमें पता होना चाहिए. 165 कंट्री में से इंडिया is ranked 46. ये रिलीज करते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ द इकोनॉमिस्ट ग्रुप. ओके, डेमोक्रेसी इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब कोई नहीं रिलीज करता. इट इज बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट. ठीक है, यही मेन चीज याद रखनी है आपको, उससे ज्यादा नहीं याद रखनी. रैंक इंडिया की देख लीजिएगा, इंडिया की 46 है. इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है, पहले इंडिया की रैंक थी 53, अब इंडिया की 46 हो गई. ओके, समझ गए? क्या में कोई मतलब नहीं, मैं तो देख के खुशी मिल गई. पाकिस्तान की 104 है, बस हम इसी में खुश हैं. लेकिन 165 कंट्रीज में अफगानिस्तान की 167 रैंक आ गई. देखिए, तो इट माइट हैव बिगन विद 165, अब ज्यादा रैंक आती होंगी, लेकिन अफगानिस्तान तो बहुत ऑलमोस्ट लास्ट पे चल रहा होगा. ठीक है, समझ गए? Now, BJP state president was asked to come before the privilege committee of Lok Sabha. तो उसके लिए हमें ये नहीं पता लगना कि अच्छा क्या हुआ था, किसने मैंड हैंडल किया था, किसको किया था, हमें वो इंटरेस्ट नहीं. हमें ये इंटरेस्ट है जानने में कि व्हाट इज कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस. नाउ प्रिविलेज कमिटी इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, इट मींस प्रिविलेज कमिटी सिर्फ एक हाउस में नहीं होती है. The Lok Sabha has its separate committee, Rajya Sabha has its separate committee. In the Lok Sabha, the committee has 15 members. In the Rajya Sabha, the committee has 10 members. ये committee क्या identify करती है? This committee identify the breach of privileges. Okay, it identify the breach of privileges. Now the Speaker of Lok Sabha heads the committee of privileges, right? And जो Rajya Sabha है उसमें who will be the head? The deputy chairman. ये बात ध्यान रखिएगा. स्पीकर इन लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा. अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है आइडेंटिफाई करना कि क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ब्रीच हुई है या नहीं हुई. ठीक है, समझ में आया? दैट कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस इज टू आइडेंटिफाई वेदर अ प्रिविलेज इज ब्रीच्ड और. अंडरस्टूड? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई टेंशन, कोई मेंशन नहीं? चलिए. Now parliamentary privileges क्या होते हैं? तो parliamentary privileges are the privileges that are given to whom? किस किस के पास होते हैं? हाँ, किस किस के पास होते हैं parliamentary privileges? MPs. And Anybody entitled to speak and take part in parliamentary proceedings. very good. And वो कौन कौन होते हैं? Lok Sabha MPs and Rajya Sabha members. Very good. हाँ, MPs हो गए सारे. और ये जी AGI, हाँ, AGI, CGI, the AGI. AGI. अच्छा, अरे AGI नहीं होते. AGI नहीं आए उससे हमसे मतलब नहीं, बस AG से मतलब है. ठीक है, AGI नहीं आए वो तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन we are more concerned AG, MPs and ministers who are not the members of any of the house, right? Ministers who are not the members of any of the house. समझ में आया? तो MPs, ministers and AG. Same चीज is for the state. MLAs, MLCs, ministers and AG. Right? Now these privileges, कुछ individual privileges होती हैं, जैसे member cannot be arrested 40 days and before the session, 40 days after the session for a civil offense. The person cannot be arrested without the permission of the presiding officer. The person may have the right to freedom of speech and expression in the house. The person is exempted from jury service. Collective privileges होती हैं. Collective privileges होती हैं that the house can have its secret sitting. House can allow and not allow the publication of its proceeding.
किसी भी स्ट्रेंजर को मना कर सकते हैं उसकी सिटिंग में आने से, मेंबर्स को पनिश कर सकते हैं अगर कोई भी कंटेम्प्ट होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है इनको इमीडिएटली अगर कोई मेंबर का अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट या रिलीज होता है, ठीक है। एंड कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द कमिटीज और हाउस, ओके, कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड। समझ में आया? अब स्टेटमेंट का आंसर दीजिए दैट द कोर्ट्स और द functioning of the legislature is out of judicial review. True or false? The functioning of the legislature is out of judicial review. True or false? True. False. False? false, False. क्यों false? क्यों? यहाँ तो लिखा है courts are prohibited to inquire into the proceedings. Courts are prohibited to inquire into the proceedings. बट सर फंक्शनिंग में लेजिस्लेशन भी तो आ जाएगा ना? हाँ तो लेजिस्लेशन हम इसे बोल रहे, मतलब कोर्ट आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। चलिए, कोर्ट्स आर और द प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर आर इज आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। चलो ये बताओ, proceedings of the legislature is out of judicial review. True or false? false, False? प्रोसीडिंग तो रहेगी, पर सर कोर्ट में मतलब हाउस में क्या हैपन हो रहा है, क्या घटित हो रहा है वहां पर, उस वो आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अरे बेटा, जुडिशरी कुछ भी कर सकती है इंडिया में, ये बात ध्यान रखना। आज दिखाएंगे, तुम प्रूव करके सर दिखाएंगे। केरला वाला जो केस था, हाँ बेटा, इसमें कोर्ट ने केरल में जो माइक वगैरह तोड़ दिए थे असेंबली में, हाँ उस पे कोर्ट ने कुछ कहा था, तो ये तो आ ही जाएंगे जुडिशरी के अंदर। हाँ बिल्कुल, कोर्ट, मैं आपको इसे बोल रहे ना, ये जब आता है ना क्वेश्चन इट इज आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो आंख बंद करके मार दो कि फॉल्स है, आंख बंद करके सोचना ही नहीं है, क्योंकि जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है हमारे। ओके, जुडिशरी इज वेरी स्ट्रांग। नाउ आप समझते हैं कि प्रिविलेजेस जो हैं, ये सब प्रिविलेजेस हैं, लेकिन आर दे मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, आर दे मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? टेल मी। आर्टिकल 105 article 105 and 194, 4 है ना? वेरी गुड, सो दे आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आंसर दीजिए, द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? नो, नहीं, No. नो, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स? वेरी गुड, तो दे आर नॉट डिफाइंड। तो क्या 105 में क्या लिखा है आप लोगों को पढ़ के बताते हैं, ठीक है? 105 में क्या लिखा है आपको पता होना चाहिए, सो दैट द क्वेश्चन में इन्होंने पहले लिखा है द प्रोविजंस शैल बी रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट। No member shall be liable to any proceeding of the court for the vote or anything said in the parliament. And third, they will have all such powers, privileges as they had until so defined in the constitution. And जब ये amendment आया था, it was through the 44th Constitutional Amendment Act. उससे पहले क्या लिखा हुआ था? That they had the same privileges as the House of Commons. Okay? हाउस ऑफ कॉमन्स। तो क्या क्या, मान लीजिए आज डेट है 29 मार्च, मान लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि दैट दे हैड द प्रिविलेजेस सेम एज दैट इफ दैट ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। अब उन्होंने अमेंडमेंट लाया, हाउस ऑफ कॉमन्स हटा दिया और बोला आज से पहले जैसी प्रिविलेजेस थी वैसी रहेंगी। प्रिविलेजेस सेम है, इट्स जस्ट दैट दे रिमूव द वर्ड हाउस ऑफ कॉमन्स। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया है? वो दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? वेरी पुडुचेरी इज डिमांडिंग स्टेट को। अच्छा, तो पुडुचेरी अभी है क्या? उसके बाद तो चीफ मिनिस्टर है ना, है ना, है ना? उसके बाद तो चीफ मिनिस्टर। पुडुचेरी क्या है फिर अभी?
यूटी with legislature. ठीक है, इट इज अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। अगर उसको स्टेट बनना है, क्यों डिमांड कर रहे हैं, तो देखिए सबको पता है डिमांड क्यों करते हैं। स्टेट है तो स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकते हैं, मोर ऑटोनॉमी है एज कंपेयर टू यूनियन टेरिटरी, है ना। ये तो हर यूनियन टेरिटरी चाहती है, जो चाहे भी नई नई बनी हो वो भी चाहती है हमें स्टेट बना दो, है ना। कैसे बना सकते हैं यूनियन टेरिटरी को स्टेट? Article 2 and 3 देखिए 3 से, 3 से सर। 3 से Yes, sir. वाओ। बेटा आर्टिकल 3 से बना सकते हैं, दैट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द कंट्री। और आर्टिकल 3 से कैसे बना सकते हैं? क्या प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन चाहिए? prior recommendation of यस सर। Prior recommendation of president is needed, then the opinion of the legislature of the state। तो पुदुचेरी में क्या ओपिनियन मांगेंगे? जब ये स्टेट ही नहीं है तो लेजिस्लेचर का ओपिनियन क्या मांगेंगे? नो नीड टू हैव दैट, देन इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एंड इफ इट इज पास्ड बाय व्हिच मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी, दैट इट विल बी गेटिंग द स्टेटस। ठीक है, क्यों डिमांड कर रहे हैं ये हम लोगों को पता ही है। यूटीज क्यों बनती है? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं दैट वो स्टेट नहीं बन सकते हैं। पुदुचेरी का क्या रीजन है? पुदुचेरी वाज अ कल्चरल यूनिट ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी, फ्रेंच कॉलोनियल पावर का जो है यूनिट था, इट वाज अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। दूसरा, पुदुचेरी इज नॉट अ होमोजेनस रीजन, इट इज ज्योग्राफिकली वेरी मच डिस्ट्रीब्यूटेड। ये यनम है पुदुचेरी का रीजन, ये पुदुचेरी है, कराईकल है, ये माही। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज मेड एज अ यूनियन टेरिटरी। क्लियर? नाउ Puducherry got the legislature and it had the right to have its administration through Article 239A, which governs the administrative rights of Puducherry. As per the Government of Union Territories Act, Puducherry को Union Territory भी मिल गई, right? Which will be having a Council of Minister and a Chief Minister, and the president have sent the his or her representative as the Lieutenant Governor। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रहेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहेगा। अगर कोई डिस्प्यूट होता है एलजी और लेफ्टिनेंट गवर्नर में, तो किसकी मानी जाएगी? सर दोनों तो सेम ही आप बोल दिए। ओ सॉरी, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में किसकी मानी जाएगी? हाँ, the president will decide. यस। अगर दोनों में डिस्प्यूट है तो ऐसा नहीं कि दोनों सुबह। दिल्ली में किसकी मानी जाएगी? Central. नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की। इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा। पुदुचेरी में द प्रेसिडेंट विल डिसाइड, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर, because there was recently an amendment in the government of NCT-D. So this is what you need to know about the पुदुचेरी। पुदुचेरी में कुछ ऐसे बिल्स भी होते हैं that has to be getting the prior approval, it means recommendation of the lieutenant governor। वो क्या बिल होते हैं? that whether when the bill is dealing with the constitution and organization of the court of judicial commissioner and the jurisdiction and powers of the court for judicial commissioner with respect to any matters of concurrent list and state list। अपने आंखों में बसा लो, ऐसा कुछ लिखा था, मार्क कर देना। ठीक है, कि इस चीज के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। जुडिशियल कमिश्नर देख लो, कंकरेंट लिस्ट देख लो और कोर्ट देख लो, ये 3 वर्ड देख लो और उससे आइडेंटिफाई करके मार्क कर दो। ठीक है, समझ गए? यस और नो? वेरी गुड। अभी तक कोई डाउट किसी को? नहीं? सर बेटा सर ये जो डिमांड हो रही है ये सिर्फ पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के लिए ही है ना? मैं इसमें फिर कराईकल माही और यनम का सर बेटा टोटल पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी सब कुछ इंक्लूड करके बनता है। ओके, ये चारों यूनिट पुदुचेरी की यूनियन टेरिटरी है। तो मतलब फिर डिमांड ये है कि ये चारों मिलकर एक स्टेट हो जाए। हाँ, ओके, मतलब कोई और डिमांड भी करे तो मान भी लेंगे। पुदुचेरी की डिमांड मानने के लिए मतलब खुद आप देख नहीं रहे, बिल्कुल ये तो ऑपरेशन जेड टाइप लग रहा है ना, उल्टा जेड। तो थोड़ा सा
डिफिकल्ट। क्लियर? प्रायर परमिशन सर किसका लेना है? लेफ्टिनेंट गवर्नर का, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रायर अप्रूवल से ही कुछ बिल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं लेजिस्लेचर ऑफ यूटी ऑफ पुडुचेरी। चलिए, अब महाराष्ट्र असेंबली से कुछ एमएलए सस्पेंड हुए, ठीक है, वो the person were these 12 MLAs were suspended for creating the ruckus in the assembly, ठीक है। अब सस्पेंड कितने हो गए? these are suspended for more than 1 year, right? अब ये इशू चला गया कोर्ट में, और हमने क्या पढ़ा है कि हाँ, इट इज नॉट आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। Whatever is to be decided in the legislature, that is to be decided by the presiding officer, right? Presiding officer के decision are out of judicial review or not? They are not, क्योंकि हम अब देख ही रहे हैं that this issue went to the court. ये issue court पर गया with respect to the parliamentary privileges and the privilege of the house, लेकिन court ने क्यों उस केस को take किया? Because first thing that if a MLA is suspended for more than 1 year, that means the constituency is unrepresented for 1 year, right? So that is again the violation of the basic structure of the constitution, because every constituency must be represented by a member. It is the representative democracy. Second, constitutional requirement है that if a member is not present for 60 days without the permission, तो सीट वेकेंट हो जाती है, ठीक है। सीट वेकेंट है तो विद इन 6 months इलेक्शंस होने चाहिए, है ना, वो भी नहीं हुए। एंड जब भी सस्पेंशन होता है एज पर द रूल्स ऑफ द हाउस, इन दैट केस द सस्पेंशन कैन नॉट लास्ट मोर देन द रिमेनिंग टर्म ऑफ दैट सेशन। लेकिन साल में जो है मैक्सिमम 6 months का गैप हो सकता है 2 सेशन में, और 1 साल से अगर ये सस्पेंडेड है तो इट मींस ये तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए सस्पेंडेड है। इसीलिए कोर्ट ने इस केस में इंटरवीन किया that for the 12 MLAs, one person representing one constituency, you are punishing the whole constituencies for the bad work of one MLA. Clear? समझ में आ गया है? Yes or no? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? तो इसीलिए हमने आपसे पूछा था जुडिशियल रिव्यू में है कि नहीं, तो जुडिशियल रिव्यू में नहीं। क्लियर? अब रूल्स क्या होते हैं कि कौन सस्पेंड कर सकता है? लोकसभा में कौन सस्पेंड कर सकते हैं? स्पीकर। एंड राज्यसभा में? चेयरमैन। नहीं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं ना, पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन, अभी तो पढ़ाया ना, है ना। तो लोकसभा में the power is with the speaker and in Rajya Sabha it is with the deputy chairman, ठीक है। they can suspend and these are as per the rules of the house. clear? समझ गए क्यों क्वेश्चन पार्लियामेंट्री कमेटी से आने के चांसेस है इस बार? क्योंकि देखो कितना न्यूज में आ चुका है। दिस इज व्हाट अबाउट दिस। क्लियर? अब एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हुआ है टू ब्रिंग द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट मेंबर ने बोला है कि आप इसको लगाओ, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। ठीक है, ये नहीं आएगा क्या क्या ऐड करवाने की बात करिए, बस क्वेश्चन आ सकता है प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। तो प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मेंबर हु इज नॉट एमपी। ट्रू और फॉल्स? अपोजिशन। ट्रू। ट्रू। ठीक है, कौन होते हैं प्राइवेट मेंबर? जो मिनिस्टर नहीं है। हाँ, अ बिल which is the person who is not a minister but a MP is a private member. The bill will be called as a private member bill when it is not introduced by a minister. ठीक है, चाहे opposition हो चाहे ruling party। ठीक है, it can be introduced in any of the house। जिसके लिए लीव लेनी पड़ती है 30 days की, बाकी पास करने का सारा तरीका सेम है। ठीक है, इंडिया में प्राइवेट मेंबर बिल 40 प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें से 5 लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, डिफरेंसेस ये है प्राइवेट मेंबर बिल एंड पब्लिक मेंबर बिल। ये मिनिस्टर
प्राइवेट मेंबर अदर देन अ मिनिस्टर। पब्लिक बिल गवर्नमेंट की पॉलिसी रिप्रेजेंट करता है। प्राइवेट बिल गवर्नमेंट के अलावा जो रिस्पॉन्ड है रिस्पॉन्स है वो करता है। पब्लिक बिल ये तो खैर चांस ज्यादा ऑब्वियसली होते हैं, मेजोरिटी होती है गवर्नमेंट के पास अप्रूव होने के, ठीक है। अगर पब्लिक बिल अप्रूव होता नहीं होता है तो देयर कैन बी नो कॉन्फिडेंस मोशन, द गवर्नमेंट्स प्रेजेंस कैन बी क्वेश्चन। प्राइवेट मेंबर में कुछ नहीं होता, ठीक है। 7 डेज का नोटिस देना होता है पब्लिक बिल में एंड 1 मंथ का नोटिस देना होता है प्राइवेट बिल, ठीक है। जो पब्लिक बिल होता है इट इज प्रिपेयर्ड विद द लॉ डिपार्टमेंट्स कंसल्टेशन। प्राइवेट मेंबर बिल मेंबर को खुद बनाना होता है। ये है अबाउट द प्राइवेट एंड पब्लिक। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? वेरी गुड। नाउ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को होगा 100 इयर्स पूरे। ये 2021 की बात है, बिकॉज इट वाज एस्टैब्लिश। पता लगा 100 इयर्स याद रह गया और बोले 1922 में बनी थी। हाँ सही है, तो गलत हो जाएगा, 1921 में बनी, ठीक है। इट हैज बीन 100 इयर्स। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है हमें जानना चाहिए। इट इज अ कमेटी दैट इज established through Government of India Act 1919, जिसको हम और किस तरीके से जानते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, दिस कमेटी हैज 22 members, 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha. Now this committee is working on the accountability of the government, and this committee analyzes the report of Comptroller and Auditor General. इस कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके जो मेंबर्स होते हैं ऑफ दिस कमेटी दे कैन होल्ड अ टर्म ओनली फॉर अ ईयर, 1 year, एंड अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर, ठीक है। टिल 1966-1967 द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी। अब जो है अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, कन्वेंशन। ओके, इट इज अ कन्वेंशन। ये चीज पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में क्लियर? यस और नो? नाउ recently a member was not allowed to ask a question in the parliament citing the reasons of national interest, ठीक है। तो अब ये बहुत जरूरी है जानना कि क्या एक मेंबर के क्वेश्चन पूछने के राइट को रोका जा सकता है, ठीक है। सो राज्यसभा के रूल्स कहते हैं हाँ, लोकसभा के रूल्स कहते हैं हाँ, एंड जो आस्क क्वेश्चंस है आप उसी चीज से आस्क कर सकते हो जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलाउ करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पावर यू नीड टू आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस, देन ओनली यू कैन आस्क क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस मेनली किस टाइम पर पूछ सकते हो? ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर, ठीक है। ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर्स यू कैन मेनली आस्क द क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन आवर होता क्या है? सो जो फर्स्ट आवर ऑफ द प्रोसीडिंग है ये वाला, ठीक है। अरे जो प्रोसीडिंग है ना 11 से 12 से 1 बजे तक, 12 AM नहीं 11 PM है, ठीक है। ये वाला आपका क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है मेनली फर्स्ट आवर रहता है, 11 से 1 होगा, 11 से 12 होगा, लेकिन फर्स्ट आवर ऑफ द डे। उसके बाद इसमें सही नहीं मेंशन है, ठीक है। ये जब टाइम ही गलत लिखा तो बाकी तो क्या ही सही होगा। फर्स्ट आवर, क्वेश्चन आवर, फिर 0, ठीक है। क्वेश्चन आवर फिर 0 आवर, क्लियर। अब क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चन आवर किससे पूछ सकते हैं? क्वेश्चन आवर टू whom you can ask questions? Any MP, sir. Any MP or only minister? Any. बताओ, any MP? चलो कुछ तो याद है जो पढ़ा है। तो क्वेश्चन आवर्स में द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू एनी MP। ये जो क्वेश्चन है दिस कैन बी स्टार्ट क्वेश्चन, यानी कि oral answer has to be given and that answer has to be followed, or that answer can follow through supplementary. Then there are unstart questions, so that answer can follow through only written answers and it cannot be following the supplementary questions. फिर short notice question होता है जहाँ पे मिनिमम
10 days का आपने नोटिस दे दिया, लेस देन 10 days का, एंड इन दैट केस ओरल आंसर देना होगा. इट मींस द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो. ठीक है. देन प्राइवेट मेंबर से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. तो इस बेसिस पे इन जनरल जब कोई अगर का प्राइवेट मेंबर का बिल आता है तब मेनली पूछे जाते हैं. ठीक है. कि ऐसा क्या दिमाग में आया था कि बोल लो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न फेड, ये वो क्या पूछ रहे, तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन. मतलब इतना सब कैसे, यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन. क्लियर, समझ गए हैं? वेरी गुड. अब फार्मर बिल पे लॉज पे बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, है ना. अब वो प्रोटेस्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर ने क्या डिसाइड किया हमारे कि हम उन लॉ को रिपील करें. तो क्या पार्लियामेंट्री लॉ रिपील हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं हमें समझना है. पार्लियामेंट के पास पावर अंडर आर्टिकल 245 है टू मेक लॉज, एंड दैट मेकिंग लॉज इंक्लूड द पावर टू रिपील लॉज आल्सो. ठीक है. नाउ सनसेट क्लॉज के साथ भी आते हैं लॉज. ये सनसेट क्लॉज क्या रहते हैं, दैट इफ देयर इज अ लॉ, that law after a point of time will be repealed on itself. ठीक है. दैट इज द मीनिंग ऑफ सनसेट क्लॉज. जैसे कि टाडा एक्ट था, टाडा एक्ट 1987 में आया था और उसमें था कि 1995 के बाद अपने आप लैप्स हो जाए. ये तो सनसेट क्लॉज होता है. अदरवाइज आप ऑर्डिनेंस के थ्रू रिपील कर सकते हैं लॉ. ठीक है. और आप लॉ के थ्रू ही लॉ रिपील कर सकते हैं. दैट यू मेक अ न्यू लॉ, दैट इज द रिपीलिंग ऑफ दिस लॉ. तो थ्रू अ लॉ आल्सो यू कैन रिपील. ठीक है. फार्मर लॉ जो है इट कैन बी रिपील्ड इवन थ्रू वन सिंगल लॉ. ओके. 3 लॉज थे, एक सिंगल लॉ से तीनों रिपील हो सकते. क्लियर. अब क्वेश्चन ये आ सकता है, इट वाज द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट इज रिपीलिंग एनी लॉज. नहीं, गवर्नमेंट ने अभी तक 6 ऐसे लॉज रिपील कर लिए हैं. ठीक है. सो इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम. इट्स जस्ट दैट इट वाज सो मच इन न्यूज दैट वी आइडेंटिफाई इट एज फर्स्ट टाइम. क्लियर, समझ गए? वेरी गुड. अब बिहार गवर्नमेंट ने बोला हमने अपनी स्पेशल कैटेगरी की डिमांड खत्म नहीं करी है. ठीक है. तो अब जब उन्होंने बोल ही दिया तो हमें पढ़ना पड़ेगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है. तो 5th फाइनेंस कमीशन 1969 में एक स्टेटस मिला था स्टेट्स को जिसको बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में एक फॉर्मूला 5th फाइनेंस कमीशन ने दिया, दैट इज कॉल्ड एज गार्डगिल फॉर्मूला. गार्डगिल फॉर्मूला के हिसाब से those states which have a hilly terrain, which have low population density, which have strategic location along the borders, which have economic and infrastructure backwardness, and which are having less or non-viable nature of finances. In that case, those states can be declared as special category states. Constitution में ऐसा कोई mention नहीं है और 14th फाइनेंस कमीशन ने ये डिमांड हटा दी कि 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कुछ होता है. क्लियर. तो डिमांड है कि मतलब चाहिए कि स्पेशल कैटेगरी, क्योंकि जब भी सेंटर पैसे देता है नॉर्मली स्टेट्स को तो सेंटर देता है 10% ऑफ लोन, 10% एज ग्रांट एंड 90% एज लोन. स्पेशल कैटेगरी के लिए उल्टा होता है. ठीक है. 90% एज ग्रांट एंड 10% एज लोन. ओके. अदरवाइज और स्टेट्स को 60-40, 75-25 या 90-10 किसी भी बेसिस पे स्टेट देता है. तो ये बेनिफिट है. बाकी 31 मार्च के बाद क्या होता है, मार्च रश होता है कि पैसा चला जाता है. बट व्हेन इट कम्स टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है. एंड इन स्टेट्स को बेनिफिट मिलते हैं टैक्सेशन में. इसीलिए द बिहार गवर्नमेंट हैज डिमांडिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. क्लियर, वेरी गुड. अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में. कोलकाता और द कैलकाटा हाई कोर्ट ने बंगाल असेंबली के स्पीकर बोला जल्दी से आप एंटी डिफेक्शन के जो भी मामले हैं उनको जो है क्लियर कीजिए. ठीक है. व्हेन दिस हैज बीन द केस तो देयर कैन बी क्वेश्चन ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ. सो एंटी डिफेक्शन लॉ, इज इट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, वेरी गुड. Yes, amendment. Yes, it is mentioned in the constitution. Is it mentioned in the original constitution? No, it was added through 52nd Constitution Amendment Act 1985. Now this includes the disqualification of members who are defecting from their political party.
अब डिफेक्शन कैसे हो सकता है? आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात ना माने, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दें, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बात करें, ठीक है, ये रीजन हो सकता है। आप हॉर्स ट्रेडिंग, हाँ बेटा, हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, तो डिफेक्शन को मतलब ही हॉर्स ट्रेडिंग होता है, ठीक है। सो अगर आप एक इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, इन दैट केस आप क्या कर रहे हैं? यू आर ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, दैट कैन बी डिफेक्शन। आप एक नॉमिनेटेड मेंबर हैं, आफ्टर 6 months ऑफ योर नॉमिनेशन यू आर ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, और आप किसी पार्टी के टिकट पे जीते हैं, आपने वो पार्टी छोड़ दी, ठीक है। इन दैट केस अ पर्सन कैन बी डिफेक्टेड। किसके पास पावर होती है एंटी डिफेक्शन में जो है डिस्क्वालीफाई करने की? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। अगर स्पीकर आता है तो बेटा, वेस्ट बंगाल में अगर आता है स्पीकर तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? That in West Bengal, speaker has the power to disqualify on the grounds of anti-defection. सर अभी ट्रू होगा। ट्रू होगा, यस, क्योंकि वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफ एक ही तो हाउस है, तो एक ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे। तो बस प्रपोजल तो सर दिया हुआ है ना। वो बेटा जब एक्सेप्ट होगा तब की बात है ना। हाँ, तो इन दैट केस आपको देखना है, अगर स्टेट का नाम है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं, स्पीकर भी चल जाए, ठीक है। बस उसके लिए पता होना चाहिए किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगर ये नहीं पता तो फिर भी गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एंटी डिफेक्शन में एकदम ध्यान रखिएगा, मर्जर इज अलाउड। जब 2/3 मेंबर्स मर्ज करते हैं तो मर्जर भी अलाउड है, और जो 1/3 बच जाते हैं वो भी अलाउड है, मतलब दे विल नॉट बी डिफेक्टेड। एंड ध्यान रखिए, द स्पीकर और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डज नॉट हैव सुओ मोटो पावर्स, मतलब the presiding officer does not have suo motu power. The presiding officer can only work on the basis of complaint, ठीक है, क्लियर। अब जो कोर्ट है, कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं और गाइडलाइंस भी दी है। कोर्ट ने बोला है कि 3 महीने के अंदर डिसाइड कर लीजिए, करिए। 3 months itself is a sufficient time, decide in that time। उन्होंने बोला अगर आपसे नहीं हो पाता है तो एक काम कीजिए, एक ट्रिब्यूनल बना दीजिए, परमानेंट ट्रिब्यूनल, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड किसी जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हेड करते हैं, ठीक है। एक ऐसा ट्रिब्यूनल बना दीजिए, एक ऐसी जो है सिस्टम बना दीजिए अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसे डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से मैनेज हो पाए। उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि मणिपुर कांग्रेस के पर्सन ने, एमएलए ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन करी, लेकिन मिनिस्टर बना दिएगा, एक डिफेक्शन नहीं हुआ उनका, ठीक है। तो इसीलिए कोर्ट्स ने गाइडलाइंस दी। आर वी क्लियर? वेरी गुड। अब यूपी की इलेक्शन से पहले वहां पर डिप्टी स्पीकर आ गए थे 5 महीने पहले, ठीक है। अब डिप्टी स्पीकर आ गए थे 5 महीने पहले, तो न्यूज में था, लेकिन डिप्टी स्पीकर कैसे आते हैं? डिप्टी स्पीकर इलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं? इलेक्ट कैसे? डिसाइडिंग, सॉरी सर, स्पीकर जो है वो डेट फिक्स करते हैं। डेट फिक्स कर ली। इलेक्शन कैसे होते हैं? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। कैसे? फर्स्ट पास द पोस्ट की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? वॉइस प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल नहीं बेटा, फर्स्ट पास द पोस्ट होता है, जिसको भी ज्यादा वोट मिल गए वो बन गए, ठीक है। सो इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू फर्स्ट पास द पोस्ट। जरूर नहीं है फर्स्ट पास द पोस्ट डायरेक्ट ही हो, इट इज नॉट नेसेसरी। समझ में आया? वेरी गुड। सो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन हुए। डिप्टी स्पीकर की क्वालिफिकेशन क्या है? मस्ट बी मेंबर ऑफ द हाउस। डेट कौन डिसाइड करेंगे इलेक्शन की? स्पीकर। डिप्टी स्पीकर जो है इज अ ऑफिस नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। डिप्टी स्पीकर कब तक होल्ड करते हैं ऑफिस? टिल द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, जस्ट बिफोर द नेक्स्ट। वेरी गुड। या तो जब तक वो मेंबर हैं, या जब तक वो रिमूव नहीं हुए हैं, और जस्ट बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड हाउस। क्लियर? ये उनकी पावर्स होती हैं। क्लियर? वेरी गुड। अब एक कमिटी चेयर हुई थी, द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है, द कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। अ कमिटी वाज चेयर ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये जो कमिटी है, इट वाज सेट अप इन 1976। ये कमिटी रिव्यू करती है कि ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कौन सी लैंग्वेज किस तरीके से चल रही है। ये प्रेसिडेंट जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में ले करते हैं जिस कमेटी की, एंड स्टेट में ले करते हैं। ये कमेटी 30 मेंबर्स की होती है, जिसमें 20 लोकसभा है, 10 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। मेंबर्स जो है
चेयरमैन इलेक्ट करते हैं और द चेयरमैन इज इलेक्टेड फ्रॉम ऑफ द मेंबर, ठीक है। कन्वेंशन में होम मिनिस्टर इज द चेयर, कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। समझ में आ गया तक, ठीक है। कहां तक पहुंच गए हम लोग? इतना आज इतना ही करेंगे, ठीक है। थोड़ा और न्यूज डेवलप कर रहे हैं। सर हाँ बेटा, सर वो फार्मर लॉ वाले में आप बोले कि लॉ को ऑर्डिनेंस के थ्रू भी हटाया जा सकता है। हाँ, लॉ को ऑर्डिनेंस के थ्रू भी हटाया जा सकता है, ठीक है सर हाँ बेटा। आपने बताया था कि वो 6 लॉ जो है अभी तक रिपील हुए हैं, वो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में हुए या अभी तक प्रेजेंट आजादी गवर्नमेंट, के बाद? प्रेजेंट आजादी के बाद प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ भूमि बोलो बेटा। सर ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि ट्रिब्यूनल सेट कर सकते, सर इसी को जुडिशियल गवर्नेंस कहते हैं। ये तो सजेशन है, रिकमेंडेशन है। जुडिशियल गवर्नेंस तो ये होता है कि जैसे उन्होंने बोला था कि पॉल्यूशन हो रहा है, सब स्कूल कॉलेजेस बंद कराओ, आया था ना दिल्ली में, तो दैट इज जुडिशियल गवर्नेंस, जब जुडिशरी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन देती है। ओके, चलिए, एनी अदर डाउट्स? टुमारो यू विल बी हैविंग योर हिस्ट्री क्लास, ठीक है, और यू विल बी हैविंग हिस्ट्री क्लास। तो कल तो नहीं है करंट अफेयर्स, या तो थर्सडे होंगे या फ्राइडे होंगे, दैट विल बी मेंशन ऑन द ग्रुप। ओके, आप लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है। एंड अब क्या है, 5 अप्रैल से 2 महीने हमारे पास बचे हैं। हम पूरी कोशिश रहेंगी 15 मई तक हम अपना करंट अफेयर्स खत्म कर दें, ठीक है। उसके बाद जो बाकी का करंट अफेयर्स रहेगा वो लास्ट वीक ऑफ मई में 1 दिन की क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। क्लियर? वेरी गुड। So thank you very much. Tomorrow you'll be having your history class at 7 PM. ठीक है? चलिए, thank you.